السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جوہیا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم ایران کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت جو سرخیاں ہیں وہ ایران کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ایران کے خلاف جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ جنگ کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی اپڈیٹ جو ہے وہ فیضان رضوی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف کیا کوئی کارروائی کی جا رہی ہے اور احتجاج کر کون رہے ہیں، اس کے حوالے سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، موجودہ صورتحال جو ایران کی ہے اس میں جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے وہاں کی؟ اچھا، جو گزشتہ ویڈیوز کے کامنٹس باکس میں اکرام صاحب ہمیں کامنٹس ریسیو ہوئے نا، میں ریڈ کر رہا تھا تو بہت سارے کامنٹس یہی ہیں کہ ایران کے اندر چل کیا رہا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہی نا، کیونکہ میڈیا کی جنگ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آن گراؤنڈ چل کیا رہا ہے وہ نہیں پتا ویورز کو۔ ان کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا تو یہ دکھا رہا ہے نا کہ ایران مخالف مظاہرے ہیں اور جلاؤ گھراؤ ہے بہت زیادہ، جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ آوازیں ہیں، بہت زیادہ نعرے ہیں، لیکن وہیں پر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ایران کے حق میں بھی مظاہرے ہیں۔ ایران کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، مخالف حق میں بھی ہو رہے ہیں اور مخالف بھی ہو رہے ہیں، اور جو حق میں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دن میں ہو رہے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ سٹرینتھ ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ ظاہر ہے کہ دن میں ہو رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے مظاہرے ہیں جو ایران کے اتنی کوریج بھی نہیں حاصل کر پا رہے۔ وہ ویسٹرن میڈیا آپ کو معلوم ہے، یورپین میڈیا، ویسٹرن میڈیا، ان کی ریئلٹی تو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں جو مظاہرے ہیں وہ بہت زیادہ وائلنٹ قسم کے ہیں، وہ بہت زیادہ تخریب کاری اس میں نظر آ رہی ہے، جلاؤ گھراؤ نظر آ رہا ہے، اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایجنٹس ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، جو ایران کے فیضان صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو ایجنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں جو رات کو مظاہرے کر رہے ہیں، کیا وہ ایرانی ہیں؟ اچھا، یہ ایرانی ہیں اور یہ جو ہیں رضا پہلوی وغیرہ، ان کے بھی بڑے فالورز ہیں ایران کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے فالورز نہیں ہیں، ان کے فالورز ہیں، اور یہ وہی والے فالورز ہیں جو سگریٹ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی تصویر کو جلایا جا رہا ہے، حجاب اتار کر اس کو آگ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ویسٹرن کلچر کی طرف جو مائل ہیں، یہ ہیں رضا پہلوی کے جو فالورز ہیں۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ قاسم سلیمانی کا جو مجسمہ تھا اس کو آگ لگا دی، اور پھر جو کچھ شرائنز ہیں، کچھ ریلیجیس سائٹس ہیں ایران کے اندر، ان کو آگ لگا دی، مساجد کو آگ لگا دی۔ تو یہ اس کے اندر جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹس، میں آپ کو مائک پومپیو اور اس کو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں نا عباس راقچی، ان کی جانب سے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیپی نیو ایئر ایران کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو بھی، اور ان پروٹیسٹرز کے ساتھ جو اسرائیلی ایجنٹس ہیں ان کو بھی۔ تو یہ مائک پومپیو لکھ رہا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی ٹرم میں میرا خیال ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو یہ امریکہ کے آفیشلز لکھ رہے ہیں، اسرائیل خود ایڈمٹ کر رہا ہے، امریکہ کے آفیشلز لکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹرز تو ہیں لیکن ان کے ساتھ اسرائیل کے ایجنٹس بھی ہیں، اور یہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ مساجد کو بھی نظر آتش کر رہے ہیں، قاسم سلیمانی کے مجسمے کو بھی جلایا جا رہا ہے، پھر جو مقدس مقامات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، اور جو کیمراز ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں، یعنی کہ تخریب کاریاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور یہ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، دن کی روشنی میں یہ کوئی مظاہرہ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ ایران کے اندر جو حکومت مخالف جو مظاہرے ہیں نا وہ رات کے اندھیرے میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو اس نے جو ہے وہ شیئر کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور چینل 13 یہ اسرائیل کا چینل ہے، اور اس نے رپورٹ بنائی ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں وہ ویریفائی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ اسرائیل کا میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ جی 1 ملین سے زیادہ لوگ نکل آئے، مشہد بہت بڑا دوسرا بڑا شہر ہے ایران کا، تو اس کو مظاہرین نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے۔ تو یہ بالکل ویریفائیڈ خبر نہیں ہے، مشہد ابھی بھی ایران کی اتھارٹیز کے کنٹرول میں ہے، اور یہ جو رات کے اندھیرے میں ہونے والے مظاہرے ہیں ان کو ایگزیجریٹ کر کے یورپین میڈیا، مغربی میڈیا، اسرائیلی میڈیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر بھی شیئر کر رہا ہے۔ تو مظاہرے ہیں ایران کے اندر، رات کے اندھیرے میں مظاہرے ہیں، اور بہت زیادہ تخریب کاری پر مبنی یہ مظاہرے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں جو ایران کی حکومت ہے اس کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ فیضان صاحب، مظاہرے جو ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ایران کیا کر رہا ہے؟ کیا کوئی کریک ڈاؤن چل رہا ہے؟ اچھا، رات کے اندھیرے میں جو مظاہرے ہیں تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے، اور کچھ خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ایران کی جانب سے، کیونکہ جس طرح کے مناظر ہیں وہ نہ دکھیں عوام کو، کیونکہ جس طرح کے مناظر ہیں مساجد کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اور کریک ڈاؤن بھی ہے
60 बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि 60 लोग मारे जा चुके हैं, ये मुजाहिरीन हैं, और कुछ जो हैं वो पुलिस एहलकार वगैरह भी हैं जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान। ये मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर देख लेंगे नमाज जनाजा के अंदर ये जो लोग हैं नमाज जनाजा अदा करने वाले, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उन मुजाहिरीन से जो रात के अंधेरे में निकलते हैं। बहरहाल ईरान की अथॉरिटीज जाहिर है कि जिस तरह के ये मुजाहरे हैं, तकरीब कारी पर मबनी, कैमरे उतार रहे हैं और जो मुकद्दस मकामात हैं उनको नजर आतिश कर रहे हैं, यानी कि एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश भी ईरान की जानिब से की जा रही है। फैजान साहब, ये क्रैकडाउन तो ईरान की अथॉरिटीज़ कर रही हैं, तो दूसरी जानब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा था कि अगर ईरान क्रैकडाउन करेगा तो रिस्पांस आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिस्पांस या अमेरिका का कोई रिस्पांस सामने आया? अच्छा, सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, ये ऑयल कंपनीज के ऑनर्स के साथ जो है वो बैठक लगाकर बैठा हुआ था। वेनेजुएला के ऑयल के चक्करों में ना इसने ऑयल एंड गैस कंपनीज के ऑनर्स को बुलाया हुआ था। इस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, फैजान रिजवी न्यूज़ के ऊपर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी ईरान ने तो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, आपने कहा था कि मैं आ जाऊंगा मैदान में, अगर ईरान इस तरह से मुजाहिरीन को टारगेट करने की कोशिश करेगा तो फिर जा रहे हैं आप ईरान में, जो ईरान जिस तरह की हरकतें कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। Will be in power after what we've seen play out on the ground there. When is the US going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. गुफ्तगू आपने सुन ली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इकराम साहब कह रहे थे कि ईरान इज इन डेंजर, ईरान जो है वो बड़े खतरे में आ गया है, क्योंकि जिस तरह के मुजाहरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने देखे, इसने तो शेयर भी किया है ना, मैंने आपको दिखाया कि जो वेरीफाइड नहीं है वीडियोस वो इसराइल के चैनल ने जो है वो लगा दी और इसने शेयर कर दी। तो ये कह रहा था कि बड़ी खतरे में है ईरान और बड़े डेंजर में है जिस तरह के मुजाहरे हैं। ट्रंप स्ट्रीट नाम दिया जा रहा है ईरान के अंदर कुछ गलियों को रात के अंधेरे में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाज रहें, मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन से बाज रहें, क्योंकि अगर ये इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की तो फिर अमेरिका जो है अब वो भी शूटिंग स्टार्ट कर देगा। अमेरिका भी शूटिंग स्टार्ट कर देगा? क्या अमली तौर पर मैदान में उतरेगा अमेरिका? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के बूट्स, इसका मतलब ये है कि हम ऐसी जगह पर हर्ट करेंगे ईरान को जहां पर वो हर्ट होगा, ऐसी जगह पर हम हिट करेंगे ईरान को, यानी कि वही न्यूक्लियर साइट्स या फिर जो मिसाइल सिटीज हैं उन पर इनकी जानिब से हमला करने की प्लानिंग तो पहले ही की जा रही थी ना अमेरिका और इसराइल की जानिब से। तो अब ये बहाना भी मिल गया, और वो जो है ना इनका ईरान का रिजा पहलवी, वो वीडियो पैगामात पर वीडियो पैगामात जारी कर रहा है। ईरान के अंदर जो लोग हैं, जो तकरीबकार हैं, उनको भड़का रहा है कि निकलो, और इधर से इसराइल और अमेरिका की भी वो मिन्नतें कर रहा है कि आ जाओ यार, इससे अच्छा मौका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने खुद कहा कि नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, बल्कि ऐसी जगह पर हिट करेंगे जहाँ पर ईरान को हर्ट होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जवाब सामने आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि ये ईरान में जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, मुजाहिरों को जो रोका जा रहा है ईरान की जानिब से, क्योंकि जिस तरह की हरकतें मुजाहिरीन कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बता भी दी, दिखा भी दी, लेकिन जो नहीं दिखा रहा मगरबी मीडिया भी, और बदकिस्मती से हमारा नेशनल मीडिया भी नहीं दिखा रहा, वो मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को कि ईरान के अंदर मुजाहिरों का है 14वां रोज और अमेरिका के अंदर मुजाहिरों का है 4था रोज। जो मिनीसोटा के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई है कि मुजाहिरे क्यों फूटे और खातून को किस तरह से आईस एजेंट की जानिब से चेहरे के ऊपर गोलियां मारी गई। 4था रोज है, मुजाहिरे थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इस तरह के मनाजिर हैं कि ये मगरबी मीडिया के ऊपर आपको नजर नहीं आएंगे, नेशनल मीडिया के ऊपर भी नजर नहीं आएंगे। हमारा नेशनल मीडिया तो जो मगरबी मीडिया बेच रहा हो, ये उठाकर उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इनको ये समझ नहीं है कि वो क्यों बेच रहे हैं,
उनका तो ये मीडिया की वॉर है ना, तो वो तो इसलिए बेच रहे हैं, आप भी उठा के बेचना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये दिखाओ ना कि अमेरिका के अंदर किस तरह के मुजाहरे हैं, अमेरिका के अंदर मुजाहिरीन के खिलाफ किस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है सड़कों के ऊपर खवातीन को, मर्दों को, बच्चों को, ये जो आइस एजेंट्स हैं, जो बदमाश हैं, इनकी जानिब से कि इन्होंने पहले खातून को मार दिया, वीडियो एविडेंस सामने है, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं। और फिर जो मुजाहरा कर रहे हैं आइस एजेंट्स को, ये कह रहे हैं कि जाओ यार यहाँ से मिनीसोटा से, और गवर्नर ने भी कह दिया मिनीसोटा के कि जाओ यार यहाँ से, हमारी पुलिस काफ़ी है, तुम कहाँ से आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बदमाशों को भेज दिया और वो चेहरों के ऊपर गोलियां मार रहे हैं खवातीन के। अच्छा यहाँ जलाओ घिराओ भी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे जा रहे हैं, बड़े उसी तरह के, उसी लेवल के ये मुजाहरे हैं अमेरिका के अंदर, मिनीसोटा के अंदर, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा है मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया के ऊपर, और हमारे मीडिया का तो मैंने आपको हाल बता दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये अमेरिका जो है, इसके डबल स्टैंडर्ड्स कौन वाकिफ नहीं है अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड से, कि वहां पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन ना करो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं आ जाऊंगा, तुम शूटिंग करोगे तो मैं शूटिंग करूंगा। जो तेरे आइस एजेंट्स कर रहे हैं वो शूटिंग नहीं है, वो फूल बरसा रहे हैं मिनीसोटा के लोगों के ऊपर। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये करकुर कुछ नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, और खबरों के मुताबिक अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस है। और ये जो रिजा पहलवी है ना, इसकी मिसाल वो मरिया कुरीना मचाडो वाली है। मरिया कुरीना मचाडो नहीं, जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर, और जिसने बहुत ज्यादा कोशिशें की, फिर एंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जा भाई, तेरे बस की बात कोई नहीं मिल रहा, तेरे बस की बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर ईरान के अंदर जिस तरह का माहौल है तो फिर अगली बारी रिजा की को आप देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार अभी मुझे नहीं पता कौन है ये, मैं ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है। और अमेरिका की इंटेलिजेंस ये है, जो कुछ रिपोर्ट्स के अंदर भी गर्दिश कर रही है, कि इतने बड़े मुजाहरे नहीं हैं, मीडिया के ऊपर होंगे लेकिन इतने बड़े मुजाहरे नहीं हैं कि ये ईरान के अंदर जो है वो तख्ता पलट कर दें, या फिर वो जो बैठा ख्वाब देख रहा है कि मैं आकर इक़्तिदार पर बैठ जाऊंगा। तो इस लेवल के मुजाहरे नहीं हैं। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया कि जी मुजाहरे इस लेवल के नहीं हैं, कि जिस तरह की बातें इसराइल और अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं कि जी तख्ता उलट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटे लेवल के मुजाहरे हैं, रात के अंधेरे में मुजाहरे हैं, मीडिया के ऊपर ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। ऑन ग्राउंड जो है वो तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, और जितनी ख़राब है उसको ईरान की अथॉरिटीज़ जो हैं वो संभाल लेंगी। लेकिन तब अमेरिका और इसराइल, जाहिर है कि इतने तो है ना मुजाहरे, और इतनी बदमज़गी तो है ना, और इतना बहाना तो है ना इनके पास कि ईरान अगर इन मुजाहरों को कंट्रोल करे ईरान, तो इसको 1 हफ्ता लगेगा ईरान को इन मुजाहरों को कंट्रोल करने में। लेकिन ये बहाना इनको अमेरिका और इसराइल इसी बहाने की तलाश में है कि चलो थोड़ा सा धक्का हम लगा देते हैं, क्योंकि ये मुजाहिरीन जो हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ जो निकले हुए हैं, तो इनके मुजाहरे काफ़ी नहीं हैं, तो इनको धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अमेरिका और इसराइल धक्का लगाने के लिए तो आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से, बल्कि जो 12 रोज़ की जंग हुई ना, उसके बाद से ये प्लानिंग करके बैठे हुए। फैजान साहब, ग्रीनलैंड को छोड़ के क्या अमेरिका जो है वो ईरान की तरफ आएगा, या फिर ईरान को साइड पे रखकर पहले ग्रीनलैंड का मसला जो है वो देखेगा? अच्छा, ये दोनों जो है ना, वो ग्रीनलैंड भी और ईरान का मामला भी, ये दोनों जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अमेरिका की लिस्ट में टॉप पर ग्रीनलैंड है, इसराइल की लिस्ट में टॉप पर जो है वो ईरान है। तो ये इसने नेतन्याहू जब आया था ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ठीक है भाईजान, आप हमला करना चाहते हैं तो हमला करें, अगर ईरान के मिसाइल सिटीज़ पर हमला करना चाहते हैं तो हमला करें, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहते हैं तो क्विकली हमला करें। तो ये इसराइल, जो ईरान वाला मामला है वो इसराइल पर डिपेंड करेगा कि इसराइल अगर यहाँ पर वो देखता है कि हाँ ये जो मौका है ये इनफ है मेरे लिए कि मैं ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर दूं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल गलती करेगा। अब्बास अराक्ची ने भी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी वार्न किया इसराइल को कि गलती ना करना, अगर तुम किसी खाम ख्याली में बैठे हो ना कि मुजाहिरों का फ़ायदा उठाकर तुम ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ोगे तो तुम्हें 12 रोज़ की जंग से बड़ा जवाब ईरान की जानिब से दिया जाएगा। जाहिर है फिर तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना ईरान के लिए, तो ईरान फिर बहुत हैवी किस्म का जवाब देगा नेतन्याहू को। तो अमेरिका के बगैर नेतन्याहू अकेला तो नहीं कूदेगा ईरान के इस मुजाहिरों के बीच में जंग लेकर,
जब तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नई ग्रीन सिग्नल देंगे नेतन्याहू को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आजकल हवाओं में हैं। वेनेजुएला के तेल की बातें, फिर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की बातें। जाहिर है कि बिजनेसमैन माइंड का आदमी है, तो इसको तेल नजर आ रहा है, इसको रेयर अर्थ्स नजर आ रहे हैं, इसको आर्कटिक ओशन नजर आ रहा है, और वहां पर इसको ईरान के बड़े तगड़े किस्म के हैवी किस्म के मिसाइल नजर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल देगा, और यही इनका जो अगला प्लान है वो यही था कि मुजाहिरे इतने इनफ हों कि इनको नजर आए कि जी हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो शौक पूरा करके देख लिया ना। तो अब ये इन मुजाहिरों के अंदर फ्यूल ऐड करेंगे, मजीद इनको बढ़ाने की, भड़काने की और ज्यादा एग्जैजरेट करके पोर्ट्रे करने की इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी, ताकि ईरान के अंदर ये जो मुजाहिरीन हैं यही कुछ करें तो करें, वरना अमेरिका और इसराइल ने तो कोशिश करके देख लिया, लेकिन इनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। और अब अकेला इसराइल मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगा ईरान के खिलाफ, जब तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे। और अमेरिका के सदर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका डोनाल्ड ट्रंप का आपको मालूम है कि अगर इसका प्लान बना तो ये अचानक जो है वो बगैर अनाउंस की और एकदम से इसकी जानिब से हमला किया जाता है। और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की तरफ उलझाकर यहाँ पर ईरान के अंदर भी कोई सरप्राइज दे सकता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि ईरान के अंदर सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि इनके लिए मौका बने, जो अब तक इतनी खराब नहीं है। अब तक इतनी खराब नहीं है। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, ईरान के हवाले से और अमेरिका की जानिब से जो मुमकिन तौर पर हमले की बात की जा रही है, उसके हवाले से तफसीलात जो हैं फैजान रिजवी साहब से तफसीली तौर पर जानने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।